Okay, so to most of the part from PPT, then I will share this PPTs also. Okay, so I think we already covered this theoretical part. Okay, what is actually uh, the meaning of this half range cosine series and half range sine series? Okay, so can anyone just tell me the definition of half range cosine series in a simple way? Anyone? What is actually the meaning of half range cosine series? Anyone? So in half-range cosine series, we extend the function Huh? such that if the given function is from 0 to L? L, Hmm. and we extend the function such that it is even in minus L to L. Yeah, very good. Okay, so basically here we have to extend that function in the interval minus L to 0 in a such a way that the function, okay, on the interval minus L to L, it become even functions. Okay, so this half range cosine series and this half range sine series, this is totally independent on the given function. गिवन फंक्शन आपका इवन आने दो और सॉरी ऑड आने दो, उस पर वो डिपेंड है ही नहीं. ओके, बट किसी भी गिवन फंक्शन को आप इवन में कन्वर्ट कर सकते हो, आप ऑड में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज द आइडिया. ओके, इन अ सिमिलर वे for the half range, just 1 minute, for the half range sine series, here we have to extend that function in a such a way that in the interval minus L to L it become odd function. Okay, and अगर आप मैथमेटिकली अगर आपको इस पे इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने, ओके, तो मैथमेटिकल तो ये और भी सिंपल हो जाता है. हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कैलकुलेट करो, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, सारे इवन के फॉर्मूलेज आपको यूज करने. एंड हाफ रेंज साइन सीरीज कैलकुलेट करना मतलब क्या है, यूज ऑल द फॉर्मूलेज ऑफ ऑड फंक्शन. ठीक है, so and okay, let me take the examples from these ppts. Yeah, so your first example is this: obtain a half range cosine series. uh, yeah, obtain half range cosine series of a function f of x is equal to x minus x square defined in the interval 0 to 1. Correct? So in all these examples, in all the examples of half range cosine series and half range sine series, your interval, your given interval is of the type 0 comma l. ठीक है, ये फिक्स होगा सारे एग्जाम्पल्स में. जो आपकी गिवन इंटरवल होगी वो इसी फॉर्म में होगी, 0 to L फॉर्म में होगी. तो आप डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर करके भी एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, सो so in solution, this is so this you have to just mention that here we have to extend this function. You can write in your language, जैसे अभी आपने बोला था वैसे भी आप लिख सकते हो. So here we have to extend this function in the interval minus 1 to 0 in such a way that this function become even function on the interval minus 1 to 1. Correct? So here we have to assume this function to be the even function in the interval minus 1 to 1, and we have to use all the formulas of even function. Okay, as this is the cosine series. Okay, so in case of even function, we know that bn is 0. Okay, so directly you can consider your Fourier series in terms of your a naught and an. Okay, so no need to calculate that bn. And what is the formula for a naught? A naught is 2 by L in case of even function, 0 to L f of x dx. What is L here? What is value of L here? One. 1. One. You can directly compare with this interval also. Right? And we know that this is the half interval, तो इसकी जो भी लेंथ होगी वही आपका क्या होगा, L होगा, क्योंकि टोटल इंटरवल को आप 2 से डिवाइड करते हो, है ना. एक्चुअल क्वेश्चन में टोटल इंटरवल को आप 2 से डिवाइड करते हो. L मतलब हाफ ऑफ द पीरियड होता है ना. ये ऑलरेडी हाफ इंटरवल है, तो इसकी जो भी लेंथ होगी वही आपका L होगा. 2 by L, 0 to L f of x dx. If I put this value here, so 2L is 1, 0 to 1, x minus x square. Now we have to just calculate the integration of this function. So that will be x square by 2 and x square ka x cube by 3. Now put upper limit minus lower limit. That gives you 1 by 6 and your final answer is 1 by 3. तो ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आने वाले. ओके, मैंने एक फाइल आपसे शेयर की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ए नॉट के ऊपर. ठीक है, बस सो ट्राई टू कंप्लीट ऑल दोज एग्जांपल्स बिफोर your tutorial. Okay, so this is the first value. Now we have to calculate an, and for an the formula is 2 by L, 0 to L f of x into cos n pi x upon L. L is equal to 1, so if I put L equal to 1, you will get 2 by 1, 0 to 1 x minus x square cos n pi x into dx. Now इसके आगे आप कैसे करोगे? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? कैसे सॉल्व करोगे आप ये इंटीग्रेशन?
कॉस्टला एक्स आणि एक्स कशी मल्टिप्लाय करून घेऊ शकतो बाजूला. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, सेपरेट करते हो, तो क्या होगा, दैट विल इंक्रीजेस युअर कैलकुलेशन. हाँ, एट द एंड इट इज अ पॉलिनोमियल ना. ओके, एक्स स्क्वायर कितना भी कॉम्बिनेशन आने दो, एट द एंड इट इज अ पॉलिनोमियल. सो यू कैन डायरेक्टली ट्रीट एज योर फर्स्ट या सेकंड फंक्शन. यूवी. हाँ, यूवी रूल से. सो यू कैन ट्रीट एज योर फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आपको पता है इसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप्स के बाद जीरो होने वाला है. सो दिस इज योर यू फंक्शन एंड दिस इज योर वी फंक्शन. And you can directly use the generalized rule of by parts. So I think it is there, yeah. And you can directly use the generalized rule of by parts. Okay, let me just erase that. Yeah. So first function, you have to keep that first function as it is. Integration of second ka integration. Now continue derivative of first, correct? 1 minus 2x. Integration of second, correct? Sin ka integration minus cos divided by n pi whole square. Now again derivative of first, which is minus 2, and integration of second, okay, which is this. And in next step the derivative becomes 0, so we have to stop this process here and now calculate at the upper limit and lower limit. So if I put upper limit, okay, this term becomes 0 because of 1 minus 1. ये exist करेगा, तो ये आपको लिखना होगा. And what about this? ये exist करेगा. What is the value of this third term? If I put the upper limit, 0 sir. 0, because if I put x equal to 1, this sin n pi, Sin n. yeah, sin n pi is 0. So basically for 1 this both term are 0. आपको बस ये टर्म लिखना है 1 के लिए. 0 के लिए भी आप चेक करो. 0 के लिए भी क्या होगा, sin 0 0 sin 0 0, तो ये एक ही टर्म एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. सो एट देन यू हैव टू राइट दिस वैल्यू फॉर दिस मिडल टर्म ओनली. सो दिस मिडल टर्म एट 1, दिस मिडल टर्म एट 0, cos 0 is 1. ठीक है. दैट यू कैन रेफर डायरेक्टली फ्रॉम द पीपीटी. बट अगेन दिस इज, यहाँ पे भी आप ज़्यादातर मिस्टेक करते हो, तो इसको इतना भी कैजुअली नहीं लेना. ओके, इसमें मिस्टेक हो जाती है तो भी आपके ऑप्शंस जल्दी मैच नहीं हो जाएंगे. ठीक है. एंड दैट गिव्स यू दिस 1 प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. नो नीड टू गो इन डिटेल अबाउट दिस an. इतना भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इसके आगे उन्होंने क्या किया कि इवन आता है तो आपको पता है, सॉरी यस, ऑड नंबर आता है तो ये -1 रहेगा, 1 - 1 0 आ जाएगा. सो इन केस ऑफ ऑड दिस वैल्यू इज 0. सो दिस वैल्यूज एग्जिस्ट ओनली फॉर एंड इज इवन. ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट, बट एक्चुअली थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है. और एमसीक्यूज में अगर आ जाता है तो आपको फिर आगे करना होगा. इट डिपेंड ऑन दी ऑप्शंस कि ऑप्शन में क्या चाहिए आपको, और सिंप्लीफिकेशन चाहिए, यहीं पे आपको स्टॉप करना है. ठीक है. Okay, and then you can write the Fourier series. Your f of x, your a0 by 2 and summation an cos of n pi x by l. Okay, सारी चीज़ें as it is उसमें पुट करो, कुछ ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. So that are the examples on half range series. We'll take one more example in the interval, क्योंकि ये इस टाइप का हमने नहीं लिया था. हाँ, इसमें एक सिंपल पार्ट क्या होता है कि इसमें आपको ये चेक ही नहीं करना पड़ता कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है. ओके, डायरेक्टली गिवन होता है कि इवन के फॉर्मूले यूज करो या ऑड के फॉर्मूले यूज करो, ये डायरेक्टली आपको गिवन होता है, तो वो चेक करने की आपको यहाँ पे जरूरत है ही नहीं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन हाफ रेंज साइन सीरीज. तो यही रीड करके आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको ऑड फंक्शन के सारे फॉर्मूले यूज करने. सो ऑब्टेन हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर दिस फंक्शन वेयर दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to pi. ओके, नाउ व्हाट इज एल. एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई. ठीक है. हाँ, वट एवर द लेंथ इज देयर दैट इज योर एल. एंड नाउ सिंस दिस इज द ऑड फंक्शन, okay, as we have to extend this function in the interval minus pi to 0 such that it become odd function. So in case of odd function we know that the value of a0 is 0, value of an is also 0. Okay, so basically we have to calculate only bn, or if you write the Fourier series, that Fourier series contain only bn sin n pi x by l, remaining terms become 0. Correct. So f of x equal to summation n runs from 1 to infinity bn sin n pi x by l. This is your Fourier series, and in this Fourier series we need to calculate only bn. And what is formula for bn? So bn is equal to 2 by l 0 to l f of x sin n pi x by l, where l is pi. So that gives me 2 by pi 0 to pi. And okay, right now we'll keep this f of x as it is, 0 to pi f of x sin n pi x dx. Okay, now in this step what is my f of x? In next step, okay, what is my f of x? अभी 0 to pi ये जो इंटरवल है, अगर आप फंक्शन के ऊपर आते हो तो 0 to pi इंटरवल आपकी दो इंटरवल में डिवाइड हो चुकी है. So this 0 to pi interval is divided in two parts. One is from 0 to pi by 2 and second is from pi by 2 to pi. आपको चाहिए 0 to here we have to write the value of f of x from 0 to pi.
बट दैट 0 to pi इंटरवल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इसलिए आपका इंटीग्रेशन भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू गो फ्रॉम 0 to pi by 2, then we have to go from pi by 2 to pi. That covers the 0 to pi. That covers the 0 to pi. But when we go from 0 to pi by 2, in this case, the value of f of x is 0. You can see from this function. And when we go from pi by 2 to pi, in this case, your value of f of x is pi minus x. Is this clear? Is this step clear to everyone? Yes, sir. Divide this. Yes, sir. हाँ, क्योंकि 0 to pi इंटरवल पे कैलकुलेट करना था, एंड 0 to pi इंटरवल ऑलरेडी फंक्शन में डिवाइड हो चुकी है. अगर यहाँ पे बस एक पाई आ जाता तो आप यही वैल्यू कॉपी करते. ठीक है, बट सिंस दिस 0 to pi इंटरवल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, सो आपको इंटीग्रेशन भी 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा. वन इज फ्रॉम 0 to pi by 2 एंड सेकंड इज फ्रॉम pi by 2 to pi. अभी फर्स्ट इंटीग्रेशन में कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, बिकॉज ऑफ 0 दैट इंटीग्रल डायरेक्टली बिकम 0. आपको बस ये सेकंड इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, एंड अगेन वी नीड टू कैलकुलेट दिस यूजिंग बाय पार्ट्स रूल. सो दिस यू कैन ट्रीट एज u, this you can treat as v, and just use the generalized rule of by parts. So that I will show you here. So your first function, integration of second, derivative of first, integration of second. Okay, and then just put the upper limit and lower limit. If I put upper limit, this term is 0 because pi minus 0, and sin n pi is 0. So for upper limit, both term are 0, but for lower limit, this will exist. So just let me write that part. Yeah. हाँ, and for lower limit यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? Pi minus pi by 2 minus cos n pi by 2. Now what is the value of cos n pi by 2? 0. ठीक है, this cos n pi by 2 is what? 0. Why it is always 0? Why it is always 0? Pi by 2 आता है. Cos pi by 2 आता है. What happen if I consider n equal to 2? हाँ, what cos n pi by 2, when I put n equal to 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1. हाँ, ये हमेशा तो 0 नहीं होगा ना, इसकी कंडीशन होगी. Odd. n is equal to odd number. हाँ, तो ये रॉन्ग आ रहा है नीचे, सो डोंट फॉलो दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, रीजन समझ में आ रहा है आप सबको? दिस cos n pi by 2 इज नॉट 0 फॉर ऑल n. जैसे sin n pi 0 होता है सारे n के लिए, इवन आने दो ऑड आने दो, दिस वैल्यू इज 0, इट विल नॉट डिपेंड ऑन दिस n. बट cos n pi by 2 is 0 only for n is odd, only in case of n is odd. So it's better to keep that value as it is. In this case it's better to keep that value as it is. या आपको अगर करना ही है इवन केस में, इवन के केस में एंड ऑड केस में, ऐसा अगर कुछ चेंज करना है तो ठीक है. सो आई विल कंसिडर द आंसर अप टू दिस स्टेप ओनली. ठीक है, सो योर फर्स्ट वैल्यू इज 0, योर फर्स्ट लिमिट इज 0, एंड डायरेक्टली राइट डाउन द सेकंड लिमिट दैट इज 2 by pi, एंड यू कैन कंप्लीट दिस. ठीक है, pi by 2 पुट करो, pi minus pi by 2 cos n pi by 2 sin n pi by 2, वैसे रहने दो. ठीक है, अगर ऑड आ जाता तो ही वो वैल्यू 0 हो जाएगी. सो ऑप्शन अगर उनको देना है तो वो वैसा गिवन होगा. इफ एन इज ऑड देन दिस 4 ऑप्शंस. ठीक है, तो ऐसा कुछ वहाँ पे एडजस्टमेंट होके आ जाएगी. ठीक है, इज दिस क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? या अगर आपको लिखना है आंसर, देन यू हैव टू एज्यूम दैट एन इज ऑड. ठीक है, ओके, बट आप डायरेक्टली पुट करके वैसे ही रखो, वैसे ही रखो, दैट इज इनफ. ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? किसी को भी कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. ओके, नहीं समझ में रहा तो आप बोलो कि आप हम कितना भी टाइम इसमें दे सकते हो. हाँ, शायद दिया है उन्होंने नीचे, या ठीक है, बट ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज, ये कुछ बुक में दिया है, ठीक है, बट इतना कुछ आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. सो नो नीड टू डू दिस प्रोसेस, दिस इज यूजलेस. सो डायरेक्टली यू कैन, क्योंकि आपको जनरल फार्मूला चाहिए तो आप वो कैलकुलेट करते हो ना, दैट इज इनफ. मतलब ये भी स्टेप नहीं, इसके बाद आप जो लिखते हो ना, दैट इज इनफ. ओके, फिर b1 कैलकुलेट करने के लिए n इक्वल टू 1 पुट करना है ना, b2 कैलकुलेट करने के लिए n इक्वल टू 2 पुट करना है. सो इट इज यूजलेस, मतलब उसके आगे वो शो करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने n के लिए bn के लिए कैलकुलेट किया है, सो इट इज मतलब इट इज इन जनरल वैल्यू. सो नो नीड टू शो दोज वैल्यूज फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप इसके ये डायरेक्टली आप स्किप कर सकते हो. ठीक है, दिस पार्ट, एंड यू जस्ट पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. Okay, come to next now. I think this example, yeah, so this is this we have completed. Yes, sin x का हमने लिया है ना,
कल के लेक्चर में? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो दैट आई विल शेयर दैट फाइल विद यू, ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको। क्या एक्सप्लेन करना है? ये हो गया हमारा कल के लेक्चर में, सो आई थिंक Yes, sir. That's हाँ, so let me skip, and this is the last example, and there are some questions for homework that I will show you. Yeah, these are the some questions. 2 minus x का कैलकुलेट करना है, and 2 minus x का कैलकुलेट करना है, फिर x स्क्वायर का है, x स्क्वायर की हाफ रेंज कोसाइन कैलकुलेट करनी है ना, साइन सीरीज कैलकुलेट करनी है cos x की, and ये भी इंटरवल का फंक्शन है, सिमिलर है, ये सेम फंक्शन है, बस उन्होंने ये चेंज किया है, कोसाइन सीरीज बोला है, 2 वैल्यूज आ जाएंगे a नॉट एंड a n. You can try these examples. Okay, that is all about half series. And now the interesting topic is this. Okay, this is the last topic. ठीक है, या तो पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि व्हाट इज हार्मोनिक एनालिसिस. ठीक है, तो वर्ड में ही पहले आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इसमें करना क्या है. ठीक है, फिर वो देखते हैं. So in harmonic analysis, you can say this is the numerical approach. Okay, what is harmonic analysis? This is the numerical approach. अभी आपको ये समझ में आता है कि numerical approach and analytical approach. Okay, are you able to differentiate these two terminology? Yes or no? क्या डिफरेंस होता है न्यूमेरिकल अप्रोच में और एनालिटिकल अप्रोच में? अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको ये पता ही होना चाहिए, मतलब MPBI कोर्स लेते हो तो आपको ये डिफरेंस पता होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल अप्रोच एंड एनालिटिकल अप्रोच? हाँ, आप एग्जांपल से बोलो, आई डोंट वांट द एग्जैक्ट डेफिनेशन. ओके सर, न्यूमेरिकल मतलब किसी चीज को सॉल्व करना और एनालिटिकल मतलब किसी चीज पे मतलब रिसर्च मतलब उसको ने क्या देखना है सर? नहीं, ओके, आपने किया ये दोनों अप्रोचेस से आप अभी लर्न कर रहे हो. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ न्यूमेरिकल अप्रोच? व्हाई जनरली पीपल प्रेफर न्यूमेरिकल अप्रोच इवन मैथमेटिकल? हाँ, क्योंकि वो सपोज न्यूमेरिकल मतलब खुद हाँ. में सॉल्व किया रहता है ना, तो और एनालिटिकल मतलब जो गिवन है उसको ही स्टडी करते हैं हम लोग. एनालिटिकल में सर एरर हो सकते हैं, न्यूमेरिकल में एरर नहीं होते. ऐसा नहीं है, एनालिटिकल इज द एग्जैक्ट अप्रोच. एनालिटिकल अप्रोच में आपको एक एग्जांपल देता हूं. आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो, अभी जो आपने लर्न फोरियर सीरीज का अभी आपने जो कैलकुलेशन किया ना, ए नॉट का, ए एन का, बी एन का, दैट इज द एनालिटिकल अप्रोच. वो एनालिटिकल अप्रोच था. ठीक है, विच इज नॉट द न्यूमेरिकल अप्रोच. सो एनालिटिकल में विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट द अप्रोक्सीमेट. न्यूमेरिकल अप्रोच में अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है न्यूमेरिकल अप्रोच में. बट वाई जनरली, अभी ये तो क्लियर है कि एनालिटिकल अप्रोच मतलब आप जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो, है ना, जो आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हो, ये जो सारी चीज़ें आप करते हो, दैट इज नथिंग बट द एनालिटिकल अप्रोच. डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप सॉल्व करते हो, दैट इज द एनालिटिकल अप्रोच. एनालिटिकल मेथड से आप सॉल्व करते हो, है ना, इंटीग्रेट करते हो, मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, दिस प्रोसेस इज द एनालिटिकल प्रोसेस. सारे केस में यही आता है. सो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, दिस प्रोसेस इज द एनालिटिकल प्रोसेस, एंड दैट गिव्स यू द एग्जैक्ट वैल्यू. पॉइंट में भी यहाँ डिफरेंस नहीं होगा, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल्स प्रेफर न्यूमेरिकल अप्रोच. टेल मी व्हाई? सिंपल रीजन है इसका. आपने चलो, शायद आपका वो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. बट न्यूमेरिकल अप्रोच का एक बेनिफिट मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए ज़्यादातर केस में न्यूमेरिकल अप्रोच रहता ही है. ओके, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो न्यूमेरिकल अप्रोच से नहीं हो सकता. ऑलमोस्ट आपको पता है इंटीग्रेशन भी न्यूमेरिकल अप्रोच से होता है. हैव यू अवेयर अबाउट दिस? यस सर. हाँ, सो ये आपको आने वाला M3 में भी ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल. ओके, इन दैट केस यू कैन सी हाउ यू कैन फाइंड दैट इंटीग्रेशन यूजिंग न्यूमेरिकल अप्रोच. डेरिवेटिव भी न्यूमेरिकल अप्रोच से होता है, वो भी आपको आने वाला है M3 में. ठीक है, ये सारी चीज़ें, जितना भी एनालिटिकल पार्ट अभी तक आपने लर्न किया है ना, वो सारा आप न्यूमेरिकल में भी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लर्न करने वाले हो धीरे धीरे. बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ न्यूमेरिकल अप्रोच? न्यूमेरिकल अप्रोच कैन इजीली प्रोग्रामेबल. उसको इजीली प्रोग्राम में कन्वर्ट करके आप बस वैल्यू डालते हो, आपको आंसर मिलता है. तो जो भी ऑनलाइन टूल्स, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ आप देख रहे हो ना, ये कैलकुलेटर में भी जो अप्रोच होता है वो न्यूमेरिकल अप्रोच होता है. अभी आप बोलोगे, मैंने तो बोला कि न्यूमेरिकल अप्रोच में अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है. यस, यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू दैट डिजिट. आप जितना उसको सॉल्व करते हो उस डिजिट तक आपको आंसर करेक्ट मिलता है. तो अगर कैल्स में मैंने सेट किया है, ओके, आई वांट द आंसर करेक्ट अप टू 10 डिजिट,
उसके आगे हमें जरूरत है ही नहीं ना, इसलिए कैलकुलेटर विल शो यू दैट आंसर अप टू 10 डिजिट ओनली, उसके आगे वो नहीं शो करता क्योंकि उसके आगे उसकी प्रोग्रामिंग है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेटर में इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पास उसके लिए एक न्यूमेरिकल अप्रोच है ना, उस मेथड के लिए, है ना, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज आप कैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। और इतने सारे मैन्युअली प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल है ही नहीं। तो आपने अगर न्यूमेरिकल अप्रोच डिफाइन किया ना, तो दैट विल गिव यू द आंसर अप टू दिस डिजिट, ओके, 10 डिजिट तक तो वो करेक्ट देगा, उसके आगे हमें पता नहीं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल अप्रोच कैन इजिली प्रोग्रामेबल, इसलिए रियल लाइफ में ज्यादातर न्यूमेरिकल अप्रोच आपका काम में आ जाता है रादर दैन दिस एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है। बट अगेन इट डिपेंड ऑन दी व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आप किस ऑब्जेक्टिव पे ज्यादातर फोकस कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको आपका न्यूमेरिकल अप्रोच एंड एनालिटिकल अप्रोच डिसाइड करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस, इन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 18 to 19% केसेस में आपको न्यूमेरिकल अप्रोच से ही जाना पड़ता है। इज दिस क्लियर नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल अप्रोच एंड एनालिटिकल अप्रोच? आप सिंपली बस याद रखो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपका एनालिटिकल अप्रोच है, उसको ही अगर आप न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करते हो दैट बिकम न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है। एनालिटिकल मेथड है न्यूमेरिकल मेथड, इतना आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इज दिस क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है कि नहीं न्यूमेरिकल अप्रोच? Yes, sir. हाँ हाँ। अभी आपने ये जो टॉपिक लर्न किया है फोरियर सीरीज, ये आपने अभी एनालिटिकल अप्रोच से लर्न किया है। अभी ये जो हमने लर्न किया इसको अगर हमें प्रोग्रामिंग में लेके आना है, सो दैट इज द डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या लर्न करना है, नाउ वी हैव टू लर्न दी न्यूमेरिकल अप्रोच, सो दैट आपको पता है मैटलैब, ओके, दिस इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट। फंक्शन पुट करो डायरेक्टली ए नॉट मिल जाता है, फंक्शन पुट करो डायरेक्टली A1 A2 A3 A4, ये सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। सो मैन्युअली ये सारा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत है ही नहीं इफ यू हैव द न्यूमेरिकल अप्रोच रिलेटेड टू दैट टॉपिक, ठीक है। सो इन दिस केस, इन दिस लास्ट टॉपिक, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ A0 AN एंड BN यूजिंग A0 AN एंड BN यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। अभी पहले आपको ये मैं क्लियर कर देता हूं, आपने एनालिटिकल मेथड से A0 कैलकुलेट किया था, आपने एनालिटिकल मेथड से डायरेक्टली AN कैलकुलेट किया था फॉर ऑल EN। आपने AN कैलकुलेट किया मतलब आपने A1 A2 A3 A4 सारे EN के लिए वो कैलकुलेट करके रखा था, ठीक है। दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेनिफिट ऑफ एनालिटिकल अप्रोच, ओके। उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि एग्जैक्ट ही मिलने वाला है। बट जब आप न्यूमेरिकल मेथड से जाते हो, न्यूमेरिकल मेथड में AN कैलकुलेट करना फॉर ऑल EN कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे होता है, अप टू डिजिट आप जा सकते हो, अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट, अप टू 4 डिजिट, इट डिपेंड ऑन यू, फाइनाइट नंबर ही होगा, बट आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, अप टू 10 डिजिट, अप टू 100, अप टू 1000, ओके, इतना आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। बट आप डायरेक्टली एन फॉर ऑल एन के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल मेथड में हमेशा रिस्ट्रिक्शन होता है, आप डायरेक्टली इन जनरल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आप 1 by 1 कैलकुलेट कर सकते हो, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे, ठीक है। सेम फॉर BN, you cannot directly find BN, but you can find B1, you can find B2, you can find B3, you can find B4 and so on। तो यहाँ पे अभी हम कैसे जाना है, हमें A0 तो एक सिंगल वैल्यू, तो ये कैलकुलेट होगी न्यूमेरिकल मेथड से, बट आप डायरेक्टली AN नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। आप क्या कैलकुलेट करने वाले हो, पहले आप A1 कैलकुलेट करने वाले हो, फिर आप A2 कैलकुलेट करने वाले हो, फिर आप A3 एंड सो ऑन, ऐसे जाना होगा। सिमिलरली BN में आप पहले B1 कैलकुलेट करने वाले हो, फिर आप B2 कैलकुलेट करोगे, फिर आप B3 कैलकुलेट करोगे एंड सो ऑन। तो ऐसे हमें जाना होगा, डायरेक्टली BN हमें नहीं मिलेगा। इसलिए एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड अप टू, अभी ये जो A1 B1 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। मैं आप आगे देने वाला हूँ, तो क्वेश्चन में आ जाता है कि कैलकुलेशन करो, डू दैट कैलकुलेशन अप टू फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब A1 B1 तक ही करो। फाइंड द फोरियर सीरीज अप टू सेकंड हार्मोनिक, मतलब A2 B2 तक ही करो। ये आपको क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट फॉर ऑल वैल्यूज, इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज है, तो कभी पॉसिबल होगा नहीं आपसे। तो ये आ जाता है कि कहाँ तक करना है, A1 B1 तक करना है, A2 B2 तक करना है, या A3 B3 तक कैलकुलेशन करना है। सो दैट पार्ट इज ऑल्सो देयर इन द एग्जाम्पल, ठीक है। सो अगेन एट द एंड इन हार्मोनिक एनालिसिस, ओके, इज द न्यूमेरिकल प्रोसेस टू फाइंड द फोरियर सीरीज, ओके। अब इस मेथड का एक और बेनिफिट क्या है, अभी तक आपने क्या किया था, आपके पास एक फंक्शन रहता है लाइक से f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक इंटरवल रहती है 0 to 2 pi latest take, एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड द फोरियर सीरीज। अभी आपके पास क्या होगा, ओके, नाउ वी डोंट हैव दैट फंक्शन, अभी आपके पास फंक्शन ही नहीं होगा, फंक्शन पता ही नहीं आपको क्या है। इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन वी हैव अ टैबुलेटेड डाटा।
अभी टैबुलेटेड डाटा का मीनिंग क्या है आपको मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ. अभी डोंट हैव अ फंक्शन, अभी आपके पास फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन के जगह पे आपके पास एक टैबुलेटेड डाटा आने वाला है. अभी टैबुलेटेड डाटा का मीनिंग क्या होता है आपको मैं वो बोलता हूँ. ठीक है. तो x मतलब डोमेन की वैल्यू, y मतलब कोडोमेन की वैल्यू या सिंपली फंक्शन की वैल्यू. ओके, y का मीनिंग क्या होता है आपका f ऑफ x. ठीक है. तो अभी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ये वैल्यू आपके हाथ में, x के कुछ भी आप ले सकते हो. इफ आई टेक 0 तो यहाँ पे y की वैल्यू में 0 ले रहा हूँ. इफ आई टेक 1 यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ. इफ आई टेक 4 यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ. इफ आई टेक 3 यहाँ पे मैं 9 ले रहा हूँ. इफ आई टेक 4 यहाँ पे मैं 16 ले रहा हूँ. इफ आई टेक 5 यहाँ पे मैं 25 ले रहा हूँ. ओके, अभी आपको ही बोलना है कि टैबुलेटेड डाटा का मीनिंग क्या है. मेरे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मेरे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मैंने आपको क्या बोला है, ये होता है रेगुलर एनालिटिकल अप्रोच में. ओके, बट नाउ इन केस ऑफ हार्मोनिक एनालिसिस वी डोंट हैव दिस फंक्शन, ये नहीं होगा आपके पास, बट इंस्टेड ऑफ दिस आपके पास ये डाटा होगा. ठीक है. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टैबुलेटेड डाटा, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाउ यू डिफाइन नाउ टैबुलेटेड डाटा? मैंने आपको दे दिया, यू जस्ट चेक हाउ दिस डाटा इज रिलेटेड विद दिस फंक्शन. मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको टैबुलेटेड डाटा से, बोलो. सर एफ के फंक्शन में जब x की वैल्यू डालेंगे ऊपर के टेबल वाले, तो फिर y आएगा. y आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है टैबुलेटेड डाटा में. ओके, x के कुछ वैल्यूज के लिए y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू आपके पास गिवन होगी. फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, ओके, यू विल हैव गिवन दिस सम वैल्यूज ऑफ फंक्शन. मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी. ठीक है. तो जैसे कि आपको अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं मतलब 3 है तो यहाँ पे 9 वैल्यू दे रहा है. ओके, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली डाटा देख के भी आप फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. ओके, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ ट्रिवियल फंक्शन. बट अगर मैं रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल. बट सारे एग्जाम्पल सारे मतलब ऑलमोस्ट इन मेनी एग्जाम्पल इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन. ठीक है. तो अभी इसके आगे आपके पास फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन की जगह पे ये इन्फॉर्मेशन होगी. ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद रखनी है कि वो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेक्स वैल्यू 0 व्हेन आई कंसीडर एक्स इक्वल टू 0. दैट फंक्शन टेक्स वैल्यू 1 इफ आई पुट एक्स इक्वल टू 1. दैट फंक्शन टेक्स वैल्यू 4 व्हेन आई पुट एक्स इक्वल टू 2. दैट फंक्शन टेक्स वैल्यू 9 व्हेन आई पुट एक्स इक्वल टू 9 एक्स इक्वल टू 3. ऐसे ये डाटा आपको रेडी करना है. ठीक है. एंड नाउ फ्रॉम दिस डाटा ओनली वी हैव टू कैलकुलेट A0, A1, B1 एंड सो ऑन. ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है. यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी तक कुछ डाउट है इस प्रोसेस में? नो में आने वाले वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया. यहाँ पे आपके पास फंक्शन की जगह पे ये रिप्लेसमेंट होगी. अभी आपका क्वेश्चन होगा कि आपको 2 रिक्वायरमेंट थे ना फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने के लिए. फंक्शन चाहिए था. ओके, तो अभी फंक्शन की जगह पे ये मैंने लिखा है, तो एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई. सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द इंटरवल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ यू कैलकुलेट योर इंटरवल. ठीक है. हाँ, सो as we know that in case of Fourier series all our given functions are periodic function. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. In case of Fourier series all our given functions are periodic function. Okay, so if I consider this data for distinct values only, okay, इतने distinct values है मेरे पास, या if I consider this function is a periodic function, okay, what is the value of that function when I consider 6? ये फंक्शन मेरा periodic function है. ठीक है. These are the only distinct values. Distinct value मतलब 0, 1, 4, 9, 16, 25. इतने distinct values आपको मिलने वाले. ठीक है. Because of periodic function. Periodic function है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ स्टेप के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा, है ना. periodic function अगर आप किसी को बोलते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि आफ्टर सर्टन स्टेज उसका रिपीटेशन स्टार्ट होने वाला है. तो मैंने आपको पहले क्या क्लियर किया कि यहां तक ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज है. तो जब आप x इक्वल टू 6 लेते हो तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अभी इसके आगे 6 ऑनवर्ड्स रिपीटेशन स्टार्ट होगा, तो वैल्यू क्या आएगी फिर 0. व्हाट इज वैल्यू एट 7? 1. वेरी गुड. 8, 4. ओके, दिस इज मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन यूजिंग टैबुलेटेड फॉर्म. तो टैबुलेटेड डाटा से आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि यार 6 नंबर से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेरी इंटरवल क्या होगी 0 टू व्हाट, ओपन इंटरवल. हाँ, तो 0 टू व्हाट, 5. हाँ 0 टू व्हाट
नहीं 6 है 6 है 6 हाँ, वी कांट कंसिडर अप टू 5 क्योंकि 5 आपको लेना है ना, 5 आपको कंसिडर करना है कि नहीं। जब आप यहाँ पे 5 लेते हो 5 कंसिडर होगा क्या? ओपन इंटरवल पता है ना सबको, ए कॉमा बी, इस ओपन इंटरवल में ए कंसिडर नहीं होता एंड बी भी कंसिडर नहीं होता। अभी आप बोलोगे अब ये 0 भी कंसिडर नहीं हो रहा है, 6 भी कंसिडर नहीं हो रहा है, ओके, बट दैट इज अलाउड क्योंकि आप अगर आप साइन, वो दोनों सेम वैल्यूज दे रहा है ना, तो साइन अगर आप थीटा फंक्शन लेते हो ना, ओके, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to π, आप ऐसे ही लिखते हो ना हमेशा, ओके, दिस होल ग्राफ इज कवर्ड ऑन द इंटरवल 0 to 2π, ओके। तो इंटरवल उसकी क्या होगी? 0 to 6 होगी, 0 to 6 आपकी इंटरवल होगी, ओके। या सिंपली जब भी आपको इंटरवल कैलकुलेट करना है हमेशा याद रखो फर्स्ट वैल्यू के लिए एंड सेकंड वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल चाहिए, इक्वल चाहिए। अभी आप देखो 0 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेट मी टेक अनदर कलर, देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्लेन दिस। 0 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 0 है एंड 6 के लिए भी 0 है, ये मैच होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके इंटरवल होते हैं ना उसके एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल चाहिए, इक्वल 0 0, ओके। या सिंपली मैंने एक और वे बोला था कि 5 तक आप नहीं स्टॉप कर सकते क्योंकि 5 आपको कंसिडर करना है। आई वांट दिस मिडल वैल्यूज, ऑल दिस मिडल वैल्यूज, ठीक है। तो इसलिए मुझे फर्स्ट से लास्ट वैल्यू तक जाना होगा। सो हियर इन दिस केस माय इंटरवल इज 0 to 6। तो अभी ये भी हो गया। अभी आपको फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ओके, इज दिस क्लियर नाउ? मैंने कैसे रिप्लेस किया आप देखो, फंक्शन था, फंक्शन को रिप्लेस किया डाटा से। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि डाटा से मुझे सेकंड चाहिए इंटरवल, तो डाटा से इंटरवल कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा दैट बिकम योर सेकंड नंबर, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा दैट बिकम योर सेकंड नंबर। फर्स्ट तो आपको समझ में आ जाता है, जो भी फर्स्ट है वो फर्स्ट नंबर होगा। इज दिस क्लियर नाउ? इंटरवल कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ओके, Yes. एंड नाउ इन दिस इंटरवल वी ऑलवेज कंपेयर विद C2 C+2L, ठीक है। अगर वहां पे हाफ रेंज के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे -L to L का पार्ट है ही नहीं, इवन एंड ऑड चेक ही नहीं कर सकते हो ना, इवन एंड ऑड आप कभी चेक कर पाओगे कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव अ फंक्शन, ठीक है। तो इसमें इवन ऑड का वो जो मिडल की केस थी वो है ही नहीं, डायरेक्टली फर्स्ट केस होगी C2 C+2L एंड डायरेक्टली लास्ट लेक्चर की केस होगी हाफ रेंज सीरीज, इन बिटवीन का पार्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो दैट सेव्स आवर कैलकुलेशन, ओके। नाउ ये अभी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है मेरे लैंग्वेज में, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ओके। हाँ, तो अभी आपको मैंने यहाँ पे एक और पार्ट, ये इस फॉर्म में आपको डाटा गिवन होता है, ओके, इस फॉर्म में x0 y0 x1 y1 xn एंड yn एंड सो ऑन। बट आपको मैंने ये भी क्लियर किया कि ये होती, दिस इज योर फाइनल फोरियर सीरीज, ये आपका यही मेन फॉर्मूला है, इसमें आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। बट नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल अप्रोच, okay, since this is numerical approach you can't directly find an, you can't directly find bn, that is the drawback। इसमें आप डायरेक्टली n नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको कैसे जाना होगा? आपको 1 by 1 जाना होगा। तो यहाँ पे मैं n equal to 1 पुट करता तो आई विल गेट दिस टर्म, n equal to 2 पुट करता हूँ आई विल गेट दिस टर्म। ये समझ में आ रहा है ये कैसे सॉल्व हो रहा है? समेशन मैंने सॉल्व किया, n equal to 1 के लिए ये मिलता है, n equal to 2 के लिए ये मिलता है, ठीक है। हाँ, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज, इफ इट इज देयर, या इट इज देयर, सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, A1 B1 तक। तो एग्जाम में अच्छे से देखो कि कैलकुलेशन कहां तक करना है। अप टू फर्स्ट हार्मोनिक है तो मतलब क्या क्या कैलकुलेट करना होगा? अप टू फर्स्ट हार्मोनिक में क्या क्या कैलकुलेशन करने होंगे आपको? A0 A1 करेक्ट, A0 A1 एंड B1 ओनली। एंड अप टू सेकंड हार्मोनिक में आपको A0 A1 B1 A2 B2 यहां तक कैलकुलेशन करनी है, इसके आगे नहीं आता आपको ज्यादातर, सो डोंट गो फर्दर, ठीक है। दिस इज दी, नाउ दिस इज योर फोरियर सीरीज, आपको समेशन सॉल्व करके लेना होगा, ठीक है। हाँ, अभी इसका प्रूफ है आगे है, चलो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, बट लेट मी जस्ट डायरेक्टली व्यू इसके आगे अभी फॉर्मूले लिखने कैसे, ठीक है। इसका प्रूफ भी है तो मैं प्रूफ भी क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन विल सी सम एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल मुझे आज ही कवर करना है, ओके। नाउ पहला भी मैं आपको ये बोलता हूँ, आई विल गिव वन ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलेज। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डायरेक्टली पूछता हूँ A2 का फॉर्मूला क्या है, A2 का फॉर्मूला क्या, आपको इमीडिएटली आना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A2। मैं अगर आपको पूछता हूँ B2 का फॉर्मूला क्या है, तो आपको इमीडिएटली समझ में आना चाहिए B2 का फॉर्मूला क्या आने वाला है, ठीक है। हाँ, तो अब ये सारे फॉर्मूलेज आपको एक ट्रिक से याद रखने हैं, ओके, एंड ये ट्रिक आपको इस स्टेटमेंट से समझ में आएगी। तो आपको फोरियर सीरीज का फॉर्मूला तो पता ही है ना, उसमें n equal to 1 n equal to 2 लेके भी आप ये लिख सकते हो, तो यहाँ तक आपको पता है कैसे आना है। अब इसके आगे, ओके, A0 का फॉर्मूला एंड ये सारे फॉर्मूला आपको मुझे एक्सप्लेन करने। सो A0 इन एवरी फॉर्मूला, ओके, यू हैव टू कंसिडर वन फैक्टर एज 2 by n।
इन एवरी एग्जाम्पल। अभी शायद इस पीपीटी में ना यहाँ पे ये नोटेशन है ना वो वही लेता हूँ, तो इस पीपीटी में यम होगा, ठीक है, लेट इट बी। ओके, तो सारे एग्जाम्पल में फर्स्ट फैक्टर आपका आता है 2/m, जैसे फोरियर सीरीज में 2/l होता है ना, तो यहाँ पे 2/m है। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज m, तो m क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिस्टिंक्ट वैल्यू जितने वो वैल्यू होगी आपकी यम की वैल्यू। जैसे कि आपको पता है इसके आगे अगर रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है ना, फिर से x नॉट आ रहा है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने हैं यहाँ पे, डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने, n+1 है ना, n+1, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। मल्टीप्लाई बाय यम इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन यू फ्रॉम द एग्जाम्पल। यम इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। हाँ, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, जस्ट टेक समेशन ऑफ yi, समेशन ऑफ yi, ठीक है। तो a0 कैलकुलेट करना सबसे इजी है। जो आपके y के वैल्यूज है ना, इनके एडिशन करो, आपके जो y के वैल्यूज है उनके एडिशन करो, मल्टीप्लाई बाय 2/m, यम इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया, इसका प्रूफ देने वाला हूं, मे बी दैट आई विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया, यस सर। ये से आ रहा है, दिस इज द रिप्लेसमेंट फॉर द इंटीग्रेशन, एंड एज आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट डेफिनेशन, इंटीग्रेशन इज रिप्लेस बाय समेशन। इतना तो पता है आपको, इंटीग्रेशन इज रिप्लेस बाय समेशन, उसका एक फॉर्मूला होता है, ये पता है आपको, मतलब डेफिनेशन नहीं पता जाने दो, मतलब कि उसका कैसे रिप्लेस होता है, कैसे समेशन में आता है, वो सब कुछ छोड़ दो। ओके, इतना तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन इज एक्चुअली डिफाइंड यूजिंग समेशन। Yes. Yes, sir. आपने देखा होगा जब अपने इंटीग्रेशन टॉपिक स्टार्ट किया ना, तब आपने ये देखा होगा कि समेशन आपने कैलकुलेट किया था, दैट समेशन इज रिप्लेस बाय द इंटीग्रेशन। तो इन जनरल योर इंटीग्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग समेशन आल्सो, है ना। वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर में आप डिवाइड करते हो, है ना, फिर वो सबके एडिशन करते हो, दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वो मैं कल लेने वाला हूँ, ओके, यूजिंग वैकॉम। आई कैन, मतलब आज मेरे पास वैकॉम नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल डायरेक्टली टेक सम एग्जांपल, और कल मैं उसका प्रूफ आपको दे देता हूँ। सो दिस इज द फॉर्मूला a0, y की एडिशन करनी है, मल्टीप्लाई बाय 2/m। चलो अभी a1 का फॉर्मूला, अब इसके आगे ट्रिवियल है, a1 का फॉर्मूला। ओके, पहला फैक्टर वही बनने वाला है, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, समेशन का साइन भी वैसा ही है, yi भी, हाँ अभी yi तो सब में आने वाला है। समेशन के अंदर आपको क्या लिखना है, ये a1 का जो टर्म है वही कॉपी पेस्ट करना है, a1 का जो टर्म है वही कॉपी पेस्ट करना है, उसमें बस a1 की जगह पे y1 रखो, yi रखो, क्योंकि ये समेशन i के ऊपर रन हो रही है ना, तो a1 की जगह पे yi रखो, तो क्या मिलेगा आपको, yi, बोलो, cos, जैसे दिखाई दे रहा है वैसे लिखना है, पाई x बाय l रन्स ओवर i, इतना ही कैलकुलेट करना। अब ये सब कुछ कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी बस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो, ठीक है। सेकंड क्लियर हो गया, a1 कैसे लिखा है मैंने, ये टर्म एज इट इज मुझे समेशन के अंदर डालना है, बस हाँ, यहाँ पे xi आ जाएगा, जहाँ पे भी y दिखाई दे रहा है वहाँ पे yi आने वाला है, क्योंकि ये रन हो रहा है ना, y0, y1, y2, y3 सो ऑन, और जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है उसके जगह पे xi आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डाटा है आपके पास। अभी आपके पास कोई x की सिंगल वैल्यू नहीं है, आपके पास x1 है, आपके पास x2 है, आपके पास x3 है, उस हिसाब से तो ये चेंज होगा। नाउ कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर b1? b1 का फॉर्मूला 2/m y summation समेशन ऑफ y sin pi x sin pi xi अपॉन l। a2 का फॉर्मूला क्या होगा, 2/m समेशन yi cos 2 pi xi by l। b2 का फॉर्मूला yi sin 2 pi xi by l। इज दिस क्लियर नाउ? फॉर्मूले समझ में आ गए सारे? यस सर। ओके, नाउ डायरेक्टली कम टू वन एग्जांपल। आज एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं, कल ये कैसे सब कुछ आ रहा है ना, दैट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। इट इज देयर इन पीपीटी आल्सो, सो इंस्टेड ऑफ दिस एग्जांपल क्लियर होता है तो फिर पीछे का पार्ट जल्दी समझ में आता है। ओके, अभी मेरा अप्रोच अलग है, तो इस अप्रोच से शायद हम नहीं जाएंगे। जस्ट 1 मिनट, लेट मी जस्ट डिलीट दिस। क्या था वैल्यू, याद रखते 41.6। चलो या ओके, अभी आप करने वाले हो सॉल्व, ओके, और मुझे आपसे आंसर चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेटर सारी चीज़ें रेडी रखो, ओके, पेजेस पे, एंड यू टेल मी द आंसर। ओके, क्या क्वेश्चन है, ऑब्टेन द कांस्टेंट टर्म। अभी कांस्टेंट टर्म क्या होता है फोरियर सीरीज में, a0 होगा ये, है ना, द फर्स्ट टर्म a0, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट साइन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कोसाइन एंड साइन टर्म्स मींस व्हाट,
A1 B1 B1 वेरी गुड, A1 एंड B1 समझ में आ गया आपको, लैंग्वेज बस अलग अलग है, ठीक है। इन एक्सप्रेशन ऑफ y फ्रॉम दिस टेबल, ओके, ऑब्टेन द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी के लिए इसको छोड़ो। हाँ, तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि आपको A0 कैलकुलेट करना है, A1 कैलकुलेट करना है, B1 कैलकुलेट करना है, ये क्लियर हो गया। चलो हाँ, अभी डाटा देखते हैं पहले अच्छे से सॉल्यूशन में। डाटा आप देखो, पहली वैल्यू 9 है, ओके, नेक्स्ट 18 है, नेक्स्ट 24 है, नेक्स्ट 28 है, नेक्स्ट 26 है, 20 है। अभी तक रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी डाटा होता है, वॉट एवर गिवन डाटा इज देयर, इट इज फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ओके। तो अगर उन्होंने नहीं दिया है तो उसका मतलब क्या है कि उस नेक्स्ट नंबर से रिपीटेशन स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं यहाँ पे ऊपर 6 लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 9 आ जाएगी, रिपीटेशन स्टार्ट होगा ना। ये फंक्शन है, y मतलब आपका फंक्शन है, वो फंक्शन पीरियोडिक है, वो फंक्शन पीरियोडिक है मतलब किसी एक स्टेज के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करने वाला है ना, देन ओनली वी कैन कॉल दैट फंक्शन एज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये समझ में आ रहा है, लास्ट कॉलम मैंने कैसे लिखा है, Yes. क्योंकि 6 वैल्यू के लिए वहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज माय इंटरवल, 0 तो पहले आने वाला है, 6 बोलो 6। 6. सारे स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ये एक नंबर भी रॉन्ग आ गया ना आपका सारा A1 सारी चीजें रॉन्ग आने वाली है। A0 तो करेक्ट होगा, बट आगे सारे रॉन्ग आ जाएंगे। ओके, तो दिस इज योर इंटरवल। किससे कंपेयर करनी है, किससे कंपेयर करनी है? C, comma C. हाँ, यहाँ पे मैंने आपको पहले क्लियर किया है, हाफ रेंज आता है तो 0 to L से कंपेयर करो, अदरवाइज डायरेक्टली किससे यहाँ पे -L to L का फॉर्म है ही नहीं, सो फॉरगेट दैट फॉर्म, C to C plus 2L। In every example, directly compare with C to C plus 2L. That implies your L is what? 3 L is 3. 3. ठीक है, ओके गुड। एंड नाउ अभी फोरियर सीरीज लिख लेते हैं अभी मैं। सो f of x is equal to, बोलो A0 by 2 प्लस क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म बोलो डायरेक्टली, समेशन का। अभी मैं समेशन में नहीं लिखने वाला, आई जस्ट वांट टू फर्स्ट टर्म। A1 cos हाँ, A1 cos cos n होता है, बट n की जगह पे 1, तो पाई x बाय l प्लस B1 sin I x by L। साइन पाई x बाय l। ठीक है, अभी l की वैल्यू आपको पता ही है, l इक्वल टू 3 पुट करके एक बार लिखो, दैट इज योर फाइनल। ये लिखना कंपल्सरी, क्योंकि इसके बाद ही फॉर्मूला समझ में आने वाले। सो A1 cos पाई x बाय 3, ये मुझे लिखना जितना हो रहा है मैं लिख रहा हूँ, आप खुद लिखो अच्छे से, साइन पाई x बाय 3। ओके, इज दिस क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर A0? फॉर्मूला क्या है? 2/m summation of y. समेशन ऑफ y। तो A0 कैलकुलेट करने के लिए लिख लेता हूँ, A0 कैलकुलेट करने के लिए 2/m समेशन ऑफ y। तो A0 कैलकुलेट करने के लिए मुझे y की एडिशन करनी होगी, ठीक है। तो y कॉलम मुझे चाहिए बेसिकली ना, कॉलम कौन सा चाहिए, y चाहिए। हाँ, A1 का फॉर्मूला क्या है, 2/m समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ व्हाट, ये देखना है ना। इसमें बस क्या करना है, A1 की जगह पे y रखना है। सो y बोलो cos pi x by 3. पाई x बाय 3, ठीक है। हाँ, तो A1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, y cos पाई x बाय 3, करेक्ट है? यस सर। cos पाई x बाय 3 ये मुझे सारे केस में कैलकुलेट करना होगा, उनकी जो एडिशन होगी वो मेरा होगा समेशन ऑफ y cos पाई x बाय 3। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। हाँ, सिमिलरली A2 का फॉर्मूला क्या है, A2 इज इक्वल सॉरी B1 का फॉर्मूला क्या है, समेशन y साइन, कर सकते डिपेंड ऑन यू, साइन पाई अपॉन 3। तो अगर मुझे B1 कैलकुलेट करना है तो मुझे y साइन पाई x बाई 3 ये कॉलम कैलकुलेट करना होगा, एंड फिर जो उसकी एडिशन होगी वो मेरा होगा समेशन मल्टीप्लाई 2/m है ही। ओके, तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या क्या कॉलम चाहिए कैलकुलेशन में, क्या क्या कॉलम चाहिए, x का करेक्ट, Y.
y का कॉलम चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ए नॉट का कवर हो गया, y कॉलम चाहिए ना, a1 के लिए ये कॉलम चाहिए ना, y पाई x बाय 3, y Yes, sir. पाई x बाय 3, और क्या कॉलम चाहिए, Y sin pi by साइन पाई x बाय 3। ये मैंने कहां से डिसाइड किया, ठीक है। नाउ आई विल शो यू दैट टेबल, ओके। बाकी चीज आप छोड़ दो, कैलकुलेशन कैसे करना है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एक्स का कॉलम, इनका पता नहीं हमने कैसे किया है, वैल्यूज क्या थे, 9 9 18, ये क्या आ रहा है, हाँ अभी आप इसी सीक्वेंस से जाओ, ठीक है। लेट मी टेक अनदर कलर। एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, बीच में छोड़ दो। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, y साइन पाई x बाय 3, ये मैंने बोला था आपको, ये क्यों लिया अभी आपको समझ में आ रहा है, why I take this particular value, is this clear now? एंड Yes, sir. यहाँ से a1 मिलने वाला है, इसकी जो सम होगी दैट इज समेशन ऑफ, इसकी जो सम होगी वो क्या होगी, समेशन ऑफ y साइन पाई x बाय 3। ते B1 असणार ना? हाँ B1 में ना? Y. ab1 A1. ab1 हाँ सॉरी ते रिवर्स झालं। सो दिस इज, यहाँ से a0 मिलेगा, यहाँ से b1 मिलेगा, और यहाँ से a1 मिलेगा, ठीक है। नाउ ओके, 2 मिनट्स आर देयर, डोंट लीव दिस सेशन, क्योंकि अब इसके आगे तो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, अभी इसमें कुछ डाउट्स है मुझे, ये बोलो अभी के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसमें कुछ डाउट्स है अप टू दिस? नो सर. ये क्लियर हो गया सबको? अभी इसके आगे कैलकुलेशन कैलसी में कैसे करना है ना, दैट आई विल शो यू। ये डायरेक्टली फॉर्मूलाज, ये आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। अब ये टेबल हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी y के एडिशन तो आप कर लोगे, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अभी ये कैसे क्विकली आप कैलकुलेट करोगे, उसकी एक ट्रिक आपको मैं देता हूँ, ठीक है। सो प्लीज स्टे ऑनलाइन। मैंने अभी वो डाउनलोड किया है कि नहीं, ऑनलाइन रहो, डोंट पुट योर रोल नंबर, ओके ठीक है। तब ओरली भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इन योर कैलकुलेटर आप ये टाइप करो, मैं आपको बोल देता हूँ डायरेक्टली, उसमें बटन पता है मुझे कौन सा है। हाँ, कैल्स में आप डायरेक्टली क्या, अभी आप रेगुलरली आप कैसे कैलकुलेट करते हो, अगर आपको कैलकुलेशन करना ही है तो आप क्या करने वाले हो, ओके। हाँ, ये वैल्यू कैसे आ रही है, आप y इक्वल टू 9 लेने वाले हो, 9 इंटू साइन पाई 0 बाई 3, ओके। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप, बोलो 18 इंटू साइन पाई x इज 1, सो पाई बाई 3 ये मिल जाएगा। आप ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, 24 इंटू साइन 2 पाई बाई 3, तो आप 1 बाय 1 कैलकुलेट कर रहे हो ना, 1 बाय 1 कैलकुलेट कर रहे हो ना। तो जब आप कैल्सी में करते हो ना, कैल्सी में क्या आपको एक फंक्शन है, आप डायरेक्टली ये फिक्स करके रख सकते हो, और उसके बाद आपको बस x रन करना है, y रन करना है। आप ये फिक्स करके रखो, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट रन योर x, जस्ट रन योर y, ठीक है। हाँ, अभी मैं वो बोलने वाला हूँ, आप साइड बाय साइड करो, और फिर मैं वो डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। या सो विल डू दैट। कैल्सी में आप क्या करो, टेक y, अल्फा से होगा शायद, और लेने के बाद मुझे बोलो टेक y, ऐसे टाइप करना है एज इट इज, या एज इट इज कैल्सी में टाइप करो साइन पाई x बाई 3, एज इट इज कैल्सी में टाइप करो, एंड वहीं पे स्टॉप करो, मुझे उसके बाद बोलो। पता नहीं आपके कैल्सी में क्या है वो मोड। Yes, sir. ये हो गया सबका, एवरीवन? Yes, sir. हाँ, नहीं तो ये ऑनलाइन में आपको कवर होगा नहीं, इट विल टेक टाइम, अगर ये कॉलम अगर हम नहीं देते आपको तो। हाँ ठीक है। नाउ आप मुझे बस ये बोलो पहले, कैल्सी में ये कैल्क बटन है क्या कहीं पे आपके कैल्सी में, कैल्क बटन? Yes, sir है। Yes, sir. हाँ, तो वो बटन प्रेस करो, क्या आ रहा है मुझे बोलो स्क्रीन पे। So y is equal to Y is equal to. y इज इक्वल टू ना, अभी आप डालो y इज इक्वल टू, मैं एक रैंडम वैल्यू बोलता हूँ, y इक्वल टू 26 डालो, इक्वल करना है ना, y इक्वल टू 26 इक्वल। अब देखो आपके कैल्सी में क्या फंक्शन। हाँ, फिर से इक्वल करो, x इक्वल टू आ रहा है क्या? yes sir. हाँ, Yes, x sir. इक्वल टू Yes, 4 डालो, फिर से इक्वल करो, वैल्यू दे रहा है ये। yes sir. हाँ,
एंड योर मोड मस्ट बी रेडियन, रेडियन मोड में ही करना है ये सब कुछ। पाई आ रहा है वहाँ पे ऊपर, पाई दिखाई दे रहा है ना, पाई रेडियन की वैल्यू है, तो रेडियन मोड में ही करो तो ये मैच होगा, अदरवाइज डिग्री मोड में ये टोटली रॉन्ग आंसर देगा आपको। ठीक है, आ रहा है। आ रहा है। Others please work on this. This is one of the important part. अगर आप ये नहीं करते हो ऐसे तो it will increases your calculation time. आपको बस क्विकली एक्स एंड वाई के वैल्यूज चेंज करने और लिखते जाना ये कॉलम, ये आपको आगे चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। ओके, M3 में ये सारी चीज़ें चाहिए। सो दिस स्मार्ट वे यू नीड इन योर फ्यूचर सब्जेक्ट्स। ओके, अभी के लिए मैं ये पे स्टॉप कर देता हूँ। यू कैन कंप्लीट दिस एंड विल डिस्कस दिस रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इसके आगे क्या करना है मैं आपको बोल देता हूँ बस। यम की वैल्यू क्या है, कितने डिस्टिंग इंटरवल है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कितने डिस्टिंग वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। सो 2/6 से हर एक को मल्टीप्लाई कर रहा है, 2/m होता है ना, तो इस वैल्यू को 125 को 2/6 से मल्टीप्लाई करो, A0 मिल गया। इस वैल्यू को 2/6 से मल्टीप्लाई करो, B1 मिल गया। इस वैल्यू को 2/6 से मल्टीप्लाई करो, A1 मिल गया। इतना ही है, हो गया फिर ये कैलकुलेशन, दैट्स इट। ठीक है, सो दैट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसके एग्जांपल हमें कल और ले, जब तक नहीं क्लियर होता तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट एटलीस्ट टुडे ऑल हैव टू प्रैक्टिस दिस कैलकुलेटर पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो यहाँ पे वर्कआउट करो, मैं ये पीपीटी आपसे शेयर कर देता हूँ इमीडिएटली, तो प्लीज डू दिस कैलकुलेशन। आपको ये आ रहा है कि नहीं, ये रेडियन मोड में करना है। और आगे एक क्वेश्चन है जो आपको डिग्री मोड में करना है, मैं कर लेता हूँ। जैसे इसमें थीटा है ना, ये भी पाई का है, डिग्री मोड का होगा इसमें कहीं पे ना कहीं पे। हाँ, और यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन डिग्री मोड में करना है, तो उस टाइम पे मोड आपको फिर से डिग्री में करना होगा, डिग्री के सारे कैलकुलेशन करने। तो यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ये मोड में स्विच करना पड़ता है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ओके, एंड इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, ओके, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? नो सर। ओके, नो सर। ओके, टुमारो बैच 1 हैज टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, जो मैंने शेयर किया है। कल का मैं रैंडम किसी को भी अप्रोच करने वाला हूँ, आई वांट प्रॉपर आंसर फ्रॉम दैट स्टूडेंट। ठीक है, कि अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं करते हो तो आगे रिजल्ट और हैम्पर हो जाएगा। आपको मैंने पहले बोला कि आई वांट आउट ऑफ मार्क्स फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। Okay, so I will end this session now. Thank you all. Thank you, sir.